ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಒಂಟಿ ಓಟ ಅಮಾನ್ರವರ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. 37 ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 5ನೇ ಓವರಿನ 4ನೇ ಎಸೆತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಸೆಗಾರ ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡನ್ನ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾದ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಸಾಹಿಲ್. ಇಮ್ರಾನ್ ರವರನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಆಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಾಹಿಲ್. ಚೆಂಡು ಚುಕ್ಕಿಯಾಗಿದೆ. 5ನೇ ಬಾರಿ 5ನೇ ಓವರಿನ 5ನೇ ಎಸೆತವನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಎಸೆತ ಗೂಟವನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದೆ ಸಾಹಿಲ್ ರವರ ಈ ಚೆಂಡು. ಇಮ್ರಾನ್ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಅನ್ನ ದಾಖಲಿಸಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ನೆರವಾದಂತಹ ಓರ್ವ ಆಟಗಾರ ಇಮ್ರಾನ್. ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ಹಾಗೂ 3 ಒಂಟಿ ಓಟದೊಂದಿಗೆ 9 ಓಟಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಾಗಿ ಈ ತಂಡಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಡೆಸಿ ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ಸಂಘಟಕರಾದ ಆಜಾದ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪರವಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಓವರಿನ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ 5 ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆರೀಸ್, ಓರ್ವ ಅದ್ಭುತ ಶೈಲಿಯ ದಾಂಡಿಗ. ಈ ಆರೀಸ್ ತಮ್ಮ ದಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಆರೀಸ್ ಪ್ರಥಮ ಎಸೆತ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ಬಂದಿದೆ. 1+1 1 ಮತ್ತು 1 2 ಓಟಗಳು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಸಾಹಿಲ್ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡಕ್ಕೆ. 39 ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಹಿಲ್ 5ನೇ ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತವನ್ನ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ನೇರ ಗುರಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ವೈಫೈ ಇದರ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಆ ವೈಫೈ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೆದ್ರಾ ಮೀಡಿಯಾ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೂರು ಎಸೆತಗಳು ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗಿ ಎಸೆಯುತ್ತಲೇ ಅಧಿಕೃತವಾದ 5 ಎಸೆತಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿತ್ತು. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ 3 ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಾಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 45 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸಾಹಿಲ್ ಪ್ರಥಮ 5 ಎಸೆತಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇದೊಂದು ಓವರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಂದ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯನ್ನ ಬದಲಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಾಹಿಲ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪು ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ 7 ಓಟಗಳು ಅದು ಅನಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಹೊರವಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಸಾಹಿಲ್ ಅನುಭವಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯದ್ಭುತ ಎಸೆತವನ್ನ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಂತಹ ಎಸೆಗಾರ. ಕೊನೆಯ ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 6 ಓಟಗಳು ಬಂದಿದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರ ನಾಟ್ ಔಟ್ ಎಂಬ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ರು. ತದನಂತರ ಆ ರನ್ನಿಗಾಗಿ ಹವಣಿಸಿತ್ತು ಕೆಎಫ್ಸಿ. ಇದನ್ನ ನಿರಾಕರಿಸಿ 2 ಓಟ ಎಂದು ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ 1 ವೈಡ್ ಹಾಗೂ 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಪಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ. ಓವರಿನ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮತ್ತೆ ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಓಡೋಡಿ ಬರುತ್ತಲೇ ಮೋಹನ್ ಯಯ್ಯಾಡಿಯವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಇದು ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿ
ಒಂದು ಎಸೆತದಲ್ಲಿ 12 ಓಟಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟ ಸರದಾರ ಸಾಹಿಲ್. ಅಮಾನು ಹೊಸಂಗಡಿ ಯಾವಾಗ ದಿಟ್ಟರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಲಾಗದೆ ಸಾಹಿಲ್ ಚೆಂಡನ್ನ ಎಸೆದಿದ್ರು. 6 ಓಟಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಅಮಾನು ಹೊಸಂಗಡಿಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಆ 6 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 51 ಓಟಗಳ ಸುರಿಮಳೆಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ರನ್ನಿನ ಸುರಿಮಳೆಗೈತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ರೂಫ್ಟೆಕ್ ನಕೀಸ್ ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿ, ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಸರದಾರನ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಅಲ್ತಾಫ್ ಬಸವನಗುಡಿಯಿಂದ ಸಿಡಿಲಬ್ಬರದ ಹೊಡೆತಗಳು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಟಸ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 5ನೇ ಓವರ್ ಅಂತೂ ಸಾಹಿಲ್ 5 ಎಸೆತದ ಮುಂದೆ ಕೇವಲ 2 ಓಟವನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪಂದ್ಯದ ಹಿಡಿತವನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೊನೆಯ ಎಸೆತ ಮುಳುವಾಗಿತ್ತು. ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ ಈಗ 53. ಇದು ಸೂರಿಂಜೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ಸಿನ ಸಂಖ್ಯೆ. ಕಾಟಿಪ್ಪಳ್ಳವನ್ನ ದಾಟಿ ಸೂರಿಂಜೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ 53. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಫ್ ಸೈಡ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿತ್ತು ಚೆಂಡು, ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. ಧನುಷ್ ಪ್ರಥಮ ಓವರನ್ನ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಎಸೆದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಟಾದ ಕೊನೆಯ ಓವರ್ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಾಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಿಕ್ಸರ್. ಹಾರಿಸ್ ರವರ ಬ್ಯಾಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಳಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತದೋ ಅದನ್ನ ಅರಿತು ಆಡುತ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಓಡೋಡಿ ಬಂದು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನುಷ್, ಮತ್ತೊಂದು ಸೊಗಸಾದ ಹೊಡೆತ ಹಾರಿಸ್ ರವರಿಂದ. 1 ಓಟ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. 2 ಓಟವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆ 2 ಓಟದೊಂದಿಗೆ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 62 ಓಟಗಳು ಪೂರ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನಲ್ಲಿ 3 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಓಡೋಡಿ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಧನುಷ್. ಲೆಗ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಹೊರಗಿದ್ದ ಚೆಂಡಿಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಕೂಡ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡು. 1+1 ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಡ್ಡ ಚೆಂಡಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡದ ಪಾಲಿಗೆ ಮುಳ್ಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ದಿನ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನುಷ್ ಸೊಗಸಾದ ಎಸೆತ. ಅಮಾನು ಸಂಗಡಿ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಲೇ ಚೆಂಡು 1 ಓಟಕ್ಕೆ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದೆ. ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 65 ಓಟಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಿನ 2 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಓಟ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ ತಂಡದ ಖಾತೆಗೆ ಸೇರಿದೆ. ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಆ ಕೊನೆಯ 1 ಎಸೆತ ಬಾಕಿ ಉಳಿಯುವಾಗ ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 66 ಓಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. 6 ವಿಕೆಟ್ಗಳ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೆಎಫ್ಸಿ ಕೃಷ್ಣಾಪುರ. ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಧನುಷ್ ಚೆಂಡಿನೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾದ ಹೊಡೆತ, ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ಹೊಡೆತ. ಆದರೆ 2 ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಷಕರ ಮಧ್ಯೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಿದ್ರಿಂದ ಅಮಾನ್ ಹೊಸಂಗಡಿಯವರ ಖಾತೆಗೆ 2 ಓಟ ಸಿಗುವುದರೊಂದಿಗೆ 68 ರನ್ನುಗಳು ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 69 ಗೆಲುವಿನ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ರೂಫ್ಟೆಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ಮೈದಾನ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವಾಗಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಮೈದಾನದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಅಂತದ್ದು, ಯಾವ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಆಟವನ್ನ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಚೆಂಡಿಗೆ ದಿಟ್ಟ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯದ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಬದಲಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇದೆ. ಈ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ತಂಡಕ್ಕೂ ಆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಲ್ಪ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟುವುದು, ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿರುವುದು, ಇದು 2 ಸಾಧ್ಯವಾದಂತ ಮೈದಾನ ಇದು. 68 ಓಟಗಳು ತಂಡದ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗಿದೆ. 69 ರನ್ನಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಪಂದ್ಯದ ಮುಂದಿನ ಆ ಬದಲಾವಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪರಿಸರದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ,
ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಕಂಠದ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯ ಆ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮನಸೂರೆಗೊಂಡು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಟುಗಳ ಆಟಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಆ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕ ವಿವರಣೆಯೊಂದಿಗೆ. ಮುಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಾಗ್ವಾರ್ ಹಾಗೂ ಟಾರ್ಪಡೋಸ್ ಖಾನ ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಮೈಕನ್ನ ಎರಡೂ ತಂಡ ಸಜ್ಜಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರವನ್ನ ನಡೆಸಲು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಮೈಕನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ ನವಾಜ್ ರವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Hello, check. Hello, mic testing. 1, 2. Hello. जमे हुए सभी दर्शकों को स्वागत करते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन पर इस मैच के साथ जुड़े हुए सभी दर्शकों को प्यार भरे स्वागत देने के बाद आरंभिक मैच के पहली इनिंग्स तो समाप्त हो चुके हैं केएफसी कृष्णापुरा और रूफटेक काठीपल्ला के बीच। और इसके आगे इस मैच के बाद होने वाली एक मैच है जागवर कृष्णापुरा और टॉर्पडोस खाना और जागवर कृष्णापुरा दोनों टीमों के कप्तान ध्यान में ले अपने सदस्यों को जितने भी जल्दी हो सके कमेंट्री बॉक्स के बगल पर सिग्नेचर की जिम्मेदारी निभाए हुए आज़ाद काठीपल्ला के महारथी बैठे हैं, तो जितने भी जल्दी हो सके आप अपने सिग्नेचर यहां पर दाखिल करें। टॉर्पडोस खाना और जागवर कृष्णापुरा। तो आइए देखते हैं आरंभिक मैच की तरफ रोशनी डालते हुए केएफसी कृष्णापुरा और रूफटेक काठीपल्ला। एक तरफ कृष्णा परिसर के शान कहलाने वाले केएफसी कृष्णापुरा और दूसरी तरफ है रूफटेक काठीपल्ला। ये नाम कौन नहीं जानते हैं। नकीज के नेतृत्व पर पिछले कई सालों से इस क्रिकेट के साथ एक अनोखे संबंध बनाकर एक बेहतरीन रिश्ता लेकर क्रिकेट को ऐसे मकाम पर पहुंचाए हैं नकीज ने अपने रूफटेक संस्था को साथ लेते हुए। और उनके सहोदरों के बारे में भी हम अवश्य यहां पर याद करना चाहते हैं। परवेज हो, शारिक हो या सवाद, इन चारों महामूर्तियों के क्रिकेट के प्रेम आजकल मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि ये काठीपल्ला के लिए एक प्रकाशमान बात बने हैं। तो आइए आप देखते हैं अंडरम क्रिकेट के कुछ चुने गिने महारथियों को अपनी टीम पर शामिल करते हुए आज रूफटेक काठीपल्ला। सवाल तो काफी बड़े खड़े किए हैं केएफसी कृष्णापुरा ने। केएफसी कृष्णापुरा आरंभिक बल्लेबाजी पर 6 ओवर के निर्धारित बल्लेबाजी के बाद 68 रन, 68 इज द टोटल, 69 इज द टारगेट, 69 रन के लक्ष्य है। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमेशा अपनी गेंदबाजी पर विपक्षी टीम के पैरों को कांप दिलाने वाले केएफसी कृष्णापुरा अब रूफटेक काठीपल्ला पर खड़े हुए महारथियों को किस तरह से बांध के रखते हैं। अब तो 2 बंदावट तो आपने देखे हैं, जिस तरह से रियाज आउट हुए और जिस तरह से अब मंजुनाथ के विकेट भी। अंडरम क्रिकेट पर ज्यादातर फोकस मिलने वाले ये 2 खिलाड़ियां, मंजुनाथ हो या रियाज गौरी, अक्सर ये 68 रन बनने के बाद 69 रन के लक्ष्य प्राप्त होते ही देखने वाले दर्शक अवश्य मैं 90% विश्वास के साथ कह सकता हूं कि लोगों के मानना यह था कि 68 भले ही बने हो केएफसी कृष्णापुरा के, लेकिन
रूफटेक पर खड़े रुके खिलाड़ियों के लिए ये कोई सवाल वाली बात नहीं है। उनकी तजुर्बा, उनके अनुभव, उनकी एक्सपीरियंस, उनके फॉर्म को अगर आप मद्देनजर रखते हुए इस मैच को देखते हैं तो कहीं ना कहीं ये 69 रन बड़ी बात बिल्कुल नहीं बन सकते हैं रूफटेक के लिए। तो शुरुआत पर अब तो ऐसे काम दिखाए हैं हिशाम। केएफसी के नाम आते ही सबसे ऊंचाई पर चमकने वाली ये नाम। केएफसी कृष्णापुरा को आज अगर इतनी ऊंचाई पर आप देख रहे हैं तो दावे के साथ, विश्वास के साथ आप यकीन मान लीजिए हिशाम वजह बने हैं, क्योंकि हिशाम की शुरुआत की वो एक एक झलक, हिशाम के वो एक एक कारनामा केएफसी के नाम काफी संख्या पर रोशन किए हैं। तो आरंभिक ओवर पर भी आप देख लीजिए किस तरह के नतीजा दिखा रहे हैं। विदेश प्रयाण के बाद भी तालीम चाहे मिले हो या ना मिले हो, लेकिन उनकी क्वालिटी पर कोई कमजोरी नहीं। हिशाम वाइटम ओवर द विकेट, और ये फील्डिंग की जाल आप देख लीजिए किस तरह से जाल फंसाए हैं। एक एक खिलाड़ियों को इस तरह से सजाए हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर। हालांकि ये एक 15 से 16 यार्ड होंगे, लेकिन कहावत के अनुसार हम कह रहे हैं 30 यार्ड सर्कल। तो उस सर्कल के अंदर खड़े रुके फील्डरों के पोजीशन और ये क्वालिटी आप देख लीजिए किस तरह से बांध के रखे हैं रूफटेक काटीपल्ला को। तो अब रनों की संख्या की तरफ ध्यान दे देंगे। ये रन सबसे पहले रन है यहां पर। हिशाम के गेंदबाजी शुरुआत होने के बाद 5वीं गेंद पर रन निकल आए। लक्ष्य आप जानते हैं 69 रन, 69। तो शुरुआत पर अपनी क्वालिटी को दोबारा साबित करने की तरीका देख लीजिए आप हिशाम के। ये है द वन एंड ओनली क्वालिटी गेंदबाज। उछाल दिए गेंद हवा में, पीछे दौड़ते हुए फील्डर, लेकिन पीछे की तरफ जो फील्डर खड़े थे उनकी विश्वास पर कोई कमजोरी नहीं। सर्कल के अंदर से अपने शरीर को पीछे मुड़ते हुए दौड़ रहे थे फील्डर उस गेंद को लपकने के लिए, लेकिन लॉन्ग ऑफ की ओर से विश्वास के साथ कदम बढ़ाते हुए फील्डर आए। क्योंकि मैं केएफसी में किरदार निभा रहा हूं, गलतियां तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते हैं हम मैदान के अंदर इस कुछ गलतियां। इस वजह से ही हमें जीत ज्यादातर मिले हैं मैदानों में, क्योंकि हम दूर रुकते हैं गलतियों से। तो विकेट नंबर 3, 1 रन और 3 विकेट। मैं चाहूंगा आप दिलो दिल से एक तालियां लगा लीजिए हिशाम के लिए, क्योंकि आरंभिक ओवर पर केवल 1 रन खर्च करते हुए 3 विकेट इस तरह से चुराना, वो भी विकेट के नतीजा, विकेट के नजारा आप देख लीजिए किन किन के विकेट चुराए हैं हिशाम ने। रियाज गौरी, मंजुनाथ और अब रवि पड्डायूरा। क्या कहते हैं आप? ये तीनों नाम अंडरआर्म क्रिकेट के ऐसे नाम हैं, आजकल के युवा शक्तियां, युवा खिलाड़ियां रोल मॉडल मानते हैं इन खिलाड़ियों को। रियाज गौरी हो, मंजुनाथ हो या रवि पड्डायूर। लेकिन इन तीनों महारथियों को पेविलियन के यानी कि डगआउट के रास्ता दिखाकर केएफसी कृष्णापुरा ने यह चेतावनी दी है कि हम सिर्फ बातों से नहीं, नामों से नहीं, प्रशंसाओं से नहीं, बल्कि अपने क्रिकेट से हम माने जाते हैं, अपने क्रिकेट से हम जाने जाते हैं। वाइटम ओवर से वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, किन शब्दों से तारीफ करें आपको। हारिस आची, कमाल की शुरुआत। ये हारिस आची जब छोटी उम्र पे ही, अपनी उम्र 14-15 साल होते ही केएफसी कृष्णापुरा के साथ जुड़े थे, तो उस वक्त छोटी छोटी कमजोरियां ताने के रूप पर इनके कान पर वापस आए थे। कुछ मैचों पर आची की छोटी छोटी कमजोरियां, काफी कुछ सुनने पड़े थे आची के लिए, लेकिन आजकल के क्रिकेट पर आची इस तरह से जवाब दिए हैं कि दूसरे सवाल बिल्कुल नहीं आ सकते हैं, दूसरे सवाल के कोई नौबत खड़ी नहीं हो सकते, क्योंकि अपनी क्वालिटी इतनी बेहतर बनाए हैं आची। आप देख रहे हैं शुरुआत की गेंद पर है। तो 9 फल के निर्गमन के बाद अब नए खिलाड़ी जुड़े हैं, फयाज, सवाद और फयाज की जोड़ी, सवाद और फयाज की जोड़ी। आची राइट एंड ओवर द विकेट। इस बार गेंद को स्क्वायर की ओर मोड़ दिए। ये रहा परफेक्ट कनेक्शन, गेंद के साथ एक बेहतरीन संपर्क बने थे। बल्ले के ऊपरी वाले हिस्सा लगे थे, अगर नीचे वाले हिस्सा पर टकराए होता तो शायद बड़े रन मिलने की संभावना बन सकती थी, लेकिन जो भी हो, काफी देर के बाद रूफटेक की बल्ले से आवाज निकल आए हैं और रन संख्या भी आगे बढ़ते हुए 3 रन।
और ये मत मानिए कि ये नामुमकिन वाली लक्ष्य है। इस मैदान के लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है ये 68 हो या 69 जैसे लक्ष्य, 69 जैसे टारगेट। अगर एक खिलाड़ी अपने औकात पर आए, अगर एक खिलाड़ी वो अपने हुनर पर आए, तो ये 69 भी गेंद बचाकर पूरे करने वाले लक्ष्य बन सकते हैं इस मैदान पर। टॉर्पेडोज का नाम, ये दूसरे कॉल आपको दे रहे हैं, आपके सदस्यों के हस्ताक्षर अब तक दाखिल नहीं बने हैं। जागवर कृष्णापुरा अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। तो अगर आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो तुरंत अपने कदम बढ़ाकर सिग्नेचर प्रक्रिया को पूरा कर दीजिएगा। आची, फयाज और सवाज की जोड़ी, और इस बार एक्स्ट्रा कवर्स के एरिया पर गेंद को फुश कर दिया फील्डर दौड़ते हुए गेंद के पास, लेकिन गेंद से पहले बिल्कुल नहीं पहुंच पाए, सीमा रेखा पार कर चुके हैं। ये वेलकम बाउंड्री, स्वागत करते हैं रूफटेक काटीपल्ला इस बाउंड्री को। रनों की संख्या कुल मिलाकर 8 रन, 8 ऑन द बोर्ड। दूसरी ओवर की प्रगति आप देख रहे हैं। तो धीरे धीरे से अगर इस तरह के कुछ प्रदर्शन निकल आए, इस तरह के बल्लेबाजी अगर निकल आए, तो वाकई वापस आती तो अवश्य ला सकते हैं आप। अच्छी अगली गेंद, वाह भाई वाह, इन स्विंगिंग डिलीवरी, इसे कहते हैं क्वालिटी। बल्लेबाजों को समझने ना देना, बल्लेबाज को इतने भी मौका ना देना कि गेंद कहां से निकल आए और कहां पर खत्म हो जाए। कितनी खूबसूरत लाइन थी वो, और रन भागने की बिल्कुल मौका नहीं देंगे, क्योंकि क्रिकेट के नियम के अनुसार वो डेलिब्रेट बन जाएंगे। अपने पैरों को जानबूझकर गेंद की दिशा में दिखाना ये डेलिब्रेट माने जाते हैं, तो वहां पर कोई रन की मौका बिल्कुल नहीं देंगे अंपायर भी। ओवर की समाप्ति, दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 8 रन। पिछले ओवर पर एक सिंगल रन खर्च करते हुए 3 विकेट लपकने वाले हिशाम के बाद आज ही अपनी शुरुआत, कमाल की शुरुआत दिखाए है। केएफसी जैसे टीम पर योगदान निभाने की उनकी औकात क्या है, उनकी हुनर, उनकी क्षमता क्या है, इस बात के जवाब है आची के ये शुरुआत वाली ओवर। तो अब 2 ओवर पर 8 बनने के बाद 61 रन की जरूरत है। 4 ओवर पर 15.25 के रन धारण, 15.25 पर ओवर। सवाज, आप जानते हैं ना सवाज को, उर्वा के मैदान याद कीजिएगा। इस मैदान में तो और सवाज अपने आप पर शर्मिंदगी दिखाते हुए मायूस अपने आप पर हुए, क्योंकि वो ऑफसाइड के एरिया पर हल्के हाथ से पुश करना चाहते थे गेंद को, लेकिन आखिरी मौके में गेंद थोड़ी सी उछाल दिखाए, बल्ले के बीचों बीच गेंद लगते ही हवा में उड़े, और पॉइंट की दिशा पर फील्डर जो इंतजार कर रहे थे बिल्कुल कोई गलती नहीं की, क्योंकि फील्डिंग पर तो केएफसी कृष्णापुरा की गलतियां आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो विकेट नंबर 5, 5वीं विकेट। पिछले दिनों में तो केएफसी कृष्णापुरा आरंभिक बल्लेबाजी पर छोटे रन बनाकर अपने गेंदबाजी के विश्वास के साथ जीतने के झंडे लहराते थे, लेकिन आज बल्लेबाजी पर इतने अच्छे रन बनाकर इस मैदान की धनात्मक अंशों को मद्देनजर रखते हुए और ऋणात्मक अंशों को गौर देते हुए ये 69 रन जो है ये बिल्कुल ये नामुमकिन नहीं है। आधे चांद की आकृति वाली ये मैदान, बेदरा मीडिया गवाह है आज के इस मैच के लिए। इरफान के सारथ्य पर बेदरा मीडिया लाइव टेलीकास्ट पर काटीपल्ला के मिट्टी पर होने वाली इस आजाद ट्रॉफी के एक एक झलक को देश विदेशों तक पहुंचाते हुए, और इस बार भी कोशिश पर कोई कमजोरी नहीं, कंजूसी नहीं, क्योंकि ये केएफसी कृष्णापुरा की खासियत है। इतने निरीक्षा तो दर्शक अवश्य करते हैं केएफसी कृष्णापुरा से। फील्डिंग की बात हो, गेंदबाजी की बात हो, टीम जीतने के लिए जरूरत वाली हर एक कदम भी ठीक ठाक निभाते हैं। स्वीप करते हुए एक सिंगल रन, शायद स्ट्राइक रोटेट करने के एक तरीका भी हो सकते हैं, क्योंकि अपने साथीदार के ऊपर विश्वास रखते हुए कभी कभार दोनों अच्छे खिलाड़ी अगर मौजूद हो पिच के ऊपर, तो उनमें से बेहतर चुनना भी जरूरी है वहां पे। अगर दोनों भी अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस पर आ जाए तो ये नतीजा नुकसान के रूप पर पहुंचते हैं टीम के लिए। दोनों खिलाड़ियां अगर अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस रखते हैं कि मैं ही बना लूंगा, उससे ज्यादा मुझ पर काबिलियत है, अगर इस बात को सोचकर बल्लेबाजी करेंगे तो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे आप। अपने औकात को समझते हुए दूसरों को मौका देना चाहिए, दूसरों के लिए मौका बनाना चाहिए, तब जाकर आप कुछ सीख भी सकते हैं। और दूसरी बात,
आपके वो विश्वास इतने मजबूत हो जाएंगे कि अगर वो ना करे तो मेरी जिम्मेदारी है। अब देखेंगे कि बचे हुए खिलाड़ी अपनी जिम्मेदारी किस तरह से निभाते हैं। टीम को जिताना या हराना ये अलग बात है, लेकिन अपने हुनर को दिखाना ये अवश्य बन जाएंगे आपके लिए। आप क्या किए हैं अपनी टीम के लिए? स्क्वायर लेग की ओर मोड़ दिए, जगह बेहतरीन बनाए, दोनों फील्डरों के बीचों बीच गेंद टिप्पा खाने के बाद थोड़ी सी धीमे गति के साथ गेंद मिले फील्डर के हाथ पर और ओवर की समाप्ति। हिशाम की स्पेल समाप्त हो चुके हैं। कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 12 रन, 12 ऑन द बोर्ड, 5 विकेट के नुकसान के बाद। तो क्रिकेट पर बने हुए इतिहास के कुछ ऐसे अनोखी बातें अब तो याद करने की जरूरत है यहां पर, क्योंकि ये आजाद ट्रॉफी है। आजाद ट्रॉफी 3 दशक के वो तजुर्बा, 3 दशक के अनुभव, 3 दशक पर बनाए हुए सामाजिक विचार हो, धार्मिक विचार हो, शैक्षणिक विचार हो, काटीपल्ला परिसर के लोगों के साथ हर एक पॉजिटिव और नेगेटिव बातों के साथ जुड़ने वाली वो फीलिंग्स आजाद काटीपल्ला के कभी नहीं भूल पाएंगे लोग। हमेशा एक यूनिटी, एक परिवार बनकर कार्यक्रम को आयोजन किए हैं, लोगों के साथ जुड़े हैं आजाद काटीपल्ला। तो आज क्रिकेट के वो जश्न को दोबारा अपनाते हुए काटीपल्ला के इस मैदान में आरंभिक मैच आप देख रहे हैं, केएफसी कृष्णापुरा और रूफटेक काटीपल्ला के बीच, और इसके बाद वाली मैच जागवर कृष्णापुरा और टॉर्पेडोज कान्हा। तो दोनों टीमों के कप्तान अपने खिलाड़ियों को जितने भी जल्दी सिग्नेचर के लिए भेजकर मैच के लिए तैयारी करें। और दूसरी बात, आज खेलने वाली हर एक टीम भी, जब आपकी टीम मैदान पर खेलते हैं तो आपके टीम के खिलाड़ियों के नाम जाने हुए एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी को अवश्य भेज दीजिएगा कमेंट्री बॉक्स के पास, क्योंकि यह प्रतिष्ठित क्रिकेट श्रृंखला है। इंडिविजुअल प्राइजेस, व्यक्तिगत रूप पर काफी सारे पुरस्कार तय किए हैं आजाद काटीपल्ला, और इसके अनुसार आपको रैंकिंग भी मिलने वाले हैं अंडरआर्म क्रिकेट पर। तो इसीलिए अपने नाम इनिशियल के साथ बताइएगा, क्योंकि एक ही नाम के कई सारे खिलाड़ियां हैं। कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के अच्छेपन दूसरे खिलाड़ी के नाम लग जाते हैं, इसलिए। और बार अच्छी गेंद, बेहतरीन लाइन, मैदान पर तो सन्नाटा छाए है। दर्शक तो उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरह से 68 रन बने थे केएफसी कृष्णापुरा के, तो शोर में कोई कमजोरी नहीं होगा। बड़ी शोर के साथ रूफटेक काटीपल्ला भी रन बनाएंगे, क्योंकि रियाज गोरी, रवि पड्डायूर, मंजुनाथ, नौफल, एक से बढ़कर एक, फयाज जैसे खिलाड़ियां अंडरआर्म क्रिकेट के ऐसे बेहतरीन महारथियों को अपनी टीम पर शामिल किए थे रूफटेक काटीपल्ला। ये गवाह है क्रिकेट के लिए कि टीम को जीतने के लिए बेहतरीन खिलाड़ियां नहीं, अच्छी प्रदर्शन की जरूरत है। कल के दिन आपके जितने भी रैंकिंग, कल के दिन आप बनाए हुए अर्धशतक हो, लिए हुए विकेट हो, जितने भी आपके मैन ऑफ द मैच हो, वो कल के लिए हो गए। आज के दिन अगर आपको हीरो बनना है तो आज करके दिखाना होगा आपको। आज आपको अपनी टीम को जिताने के लिए आपकी भूमिका बेहतर दिखाना होगा, तब जाकर आज आपको प्रशंसा देंगे लोग, क्योंकि लोग आज के अखबार पढ़ना चाहते हैं, कल की नहीं। टॉर्पेडोज कान्हा टॉस जीत चुके हैं, कंग्रेचुलेशंस। तो अपने निर्धार के साथ तैयार हो जाइएगा अगली मैच के लिए, और उसी तरह जागवर अपने खिलाड़ियों को तैयार रखिएगा। केएफसी कृष्णापुरा, हकीम अड्डूर बाएं हाथ के एक बेहतरीन ऑलराउंडर, अड्डूर परिसर के ये बेहतरीन खिलाड़ी, क्योंकि अड्डूर परिसर की खासियत यह है कि वहां पर अंडरआर्म और ओवरआर्म दोनों क्रिकेट चलते हैं अड्डूर परिसर में। तो उस जगह से अगर कोई अंडरआर्म क्रिकेट के एक बेहतरीन गेंदबाज आपके साथ मिलते हैं तो निश्चित रूप से उनकी तरफ रोशनी डालना ये अवश्य बन जाएंगे, क्योंकि हकीम अड्डूर मैंगलोर परिसर के अच्छे टीमों के साथ अपने अनुभव लिए हैं, केएफसी कोडिकल जैसी टीमों पर भी योगदान निभाए हैं। तो केएफसी कृष्णापुरा आज के इस प्रतियोगिता के लिए, आजाद ट्रॉफी के लिए, अपनी टीम में भी छोटे से बदलाव दिखाते हुए उतर आए हैं अखाड़ पर। हकीम ओवर की अगली गेंद को लेकर लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, और इस बार भी कोशिश तो उसी तरह से देखने को मिल रहे हैं जिस तरह से केएफसी कृष्णापुरा के बल्लेबाजों ने किए थे। नतीजा वहां पर आवाज आए, यहां पर सन्नाटा। तो ओवर की समाप्ति, 4 ओवर की समाप्ति, रनों की संख्या कुल मिलाकर 22 रन, 22 आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 4 ओवर। सो 69 इज द टारगेट।
47 नीडेड, 47 रन की जरूरत है 12 गेंदों पर। और इतने भी गहराई पर यह मत सोचिएगा कि 2 ओवर पर 47 रन कितने भी बड़े टीम हो, कितने भी बड़े खिलाड़ी हो, कैसे बनाएंगे। यह सवाल अगर आपके मन में है तो जवाब इससे पहले मिल चुके हैं। आज और एक जवाब भी मिल सकते हैं अगर वो काबिलियत रखते हैं बल्लेबाज। यहां पर यह छोटी मैदान है, यहां पर बल्ले से गेंद संपर्क बनाने की वो पोजीशन अगर सही हो, रन तो मिल जाएंगे आपको। पहली गेंद मिड विकेट के एरिया पर गेंद को खेले, 1 रन, अब मिले 4 रन। पैरों के साथ गेंद को रोकना चाहते थे, लेकिन क्योंकि उनकी मानना भी गलत नहीं, अगर वो झुकते हुए हाथ बढ़ाते, वो हाथ बढ़ाने से गेंद रोकने की कोई संभावना उन्हें नहीं नजर आए, इसीलिए दौड़ते ही अपने पैरों के सहारे गेंद को रोकने के प्रयास किए, लेकिन गेंद उनके पैरों को वंचित करते हुए 4 रन की तरफ। विनोद पोलार्ड, अंडरआर्म क्रिकेट के और एक चमकता हुआ खिलाड़ी। पोलार्ड नाम इसलिए जुड़े हैं क्योंकि इनकी बल्ले से तूफानी बल्लेबाजी निकल आते हैं। इस बार लंबी गेंद ऑफ स्टंप से काफी बाहर, वाइड बॉल के इशारा अंपायर से। मोहन ययाड़ी और प्रदीप कोठारी, 2 ऐसे अनुभवी रेफरियां। काफी बार हमने इनके तजुर्बे के बारे में, इनकी बेहतरीनपन के बारे में हमने कहा है। आज अगर अंडरआर्म क्रिकेट हो या ओवरआर्म क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट हो या लेदर क्रिकेट, ऐसे महारथियों की जिम्मेदारी बहुत ही खुशी के साथ देखते हैं, रिस्पेक्ट के साथ देखते हैं। जी हाँ, बहुत बहुत स्वागत है मजीद मल्लूर जी आपको। अंडरआर्म क्रिकेट के एक ऐसे चमत्कारी आवाज है, एक एंटरटेनमेंट आवाज मजीद मल्लूर के, तो इस श्रृंखला में बहुत बहुत स्वागत है मजीद मल्लूर जी। उसी तरह से समद काटीपल्ला की आवाज भी आप सुन रहे हैं, इस मिट्टी के शान मान सम्मान कहलाने वाली वो आवाज। उम्र अब 53 साल होने के बाद भी अपनी जबान से वो मीठी आवाज इस तरह से निकालते हैं समद काटीपल्ला। हालांकि वो मानते नहीं है कि वो 53 साल के हैं, वो आज भी 38 कह रहे हैं। विनोद पोलार्ड, केएफसी ने तो वाकई रूफटेक काटीपल्ला की डगआउट पर सन्नाटा फैलाए हैं। वातावरण में तो गर्मी आप देख रहे हैं, लेकिन खतरे की बादल मंडराता हुआ रूफटेक के ऊपर, और इस बीच और एक विकेट की संभावना। जी हां, केएफसी कृष्णापुरा तो आरंभिक मैच पर जितने एक्साइटमेंट है, क्योंकि लोग तो जानते थे कि केएफसी कृष्णापुरा अच्छे हैं, बेहतर हैं, इतनी आसानी से हार मानने वाले से बिल्कुल नहीं है। लोकल विभाग की टीमों में से अगर मैंगलोर विभाग के टीमों को परेशान किए हैं, अगर मैंगलोर विभाग के खिलाड़ियां या टीम किसी और के सामने हार के वो महसूस अपनाते हैं, तो ये विश्वास के साथ हम कह सकते हैं वो नाम है केएफसी कृष्णापुरा। केरला में भी काफी डिमांड रखते हैं इस टीम को। हमारे साथ ही खुद रिक्वेस्ट किए थे, दरख्वास्त किए थे कि केएफसी कृष्णापुरा को ला लीजिएगा, हमें देखना है केएफसी कृष्णापुरा के वो झलक को। तो हम केएफसी कृष्णापुरा के महारथियों से भी निवेदन करते हैं कि अंडरआर्म क्रिकेट जहां जहां भी आपको मिलते हैं, छोटी सी एरिया है, तकरीबन 170 किलोमीटर के ये सराउंडिंग अंडरआर्म क्रिकेट के लिए, तो उन जगहों तक आपको पहुंचना ये जरूरी है। अंडरआर्म क्रिकेट पर आप तो ज्यादातर यहां पर लगभग आपने एक 50, 60 या 70 या 80 टीम को आप देखे होंगे, लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वर्तमान क्रिकेट पर 332 टीम रजिस्टर्ड होकर मैच खेल रहे हैं अंडरआर्म क्रिकेट में। तो उन टीमों तक आपके कदर दिखाने की जरूरत भी है। अच्छे प्रतियोगिता में अपनी टीम को लेकर भाग लीजिएगा, किसी और टीम पर अपने खिलाड़ियों को शामिल करते हुए जश्न मनाने से बेहतर यह है कि अपनी टीम के साथ क्रिकेट को खेलना, क्योंकि लोग आपकी टीम को पसंद करते हैं और आपके टीम के क्रिकेट को पसंद करते हैं। संतोष बंटवाल, अंडरआर्म क्रिकेट के और एक ब्यूटीफुल नाम, सुंदर नाम। ये अंडरआर्म क्रिकेट पर जितने भी आप तालमेल देखे हैं, जितने भी आप अलग अलग नैया देखे हैं, उन तमाम बातों पर
ज्यादातर पहचान दिखाने वाली ये चेहरा है संतोष बंटवाल। लेग स्पिन की गेंदबाजी, राइट हैंड और रिवर्स स्वीप पर माहिर वाली वो बल्लेबाजी। उनके घर पर हमने एक वीडियो पर हमने देखे थे, जितने भी कैमरा जितने भी अंदर लेके गए ट्रॉफियों के भीड़ वहां पर लगे थे संतोष बंटवाल के घर में। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन भी आपके प्रदर्शन के लिए उम्र कोई पाबंदी ना बने, हमेशा आप चमकते रहें। संतोष ओवर के 5वीं गेंद को लेकर तैयार, और आप देख रहे हैं आजाद यूथ काउंसिल प्रस्तुत किए हुए आजाद ट्रॉफी 2020 पर आजाद फाउंडेशन। जी हाँ, छोटी सी बदलावन, पिछली बार हमें मिले थे वो संदेश, लेकिन सालों से वो आवाज निकल आते आते ही जबान भी उस एरिया से बदलना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएंगे। तो आजाद फाउंडेशन प्रस्तुत किए हैं इस एक बेहतरीन प्रतियोगिता को। अंडरआर्म क्रिकेट के ज्यादातर खिलाड़ियों के समागम है आज के ये क्रिकेट श्रृंखला। 69 रन के लक्ष्य को पीछे करते हुए रूफ टेक का टिप्पल्ला, रन बनाने की जगह विकेट गंवाते हुए अब तो 99% सर झुकाते हुए नजर आए हैं केएफसी कृष्णापुरा के सामने। संतोष की आखिरी गेंद, उछाल दिए गेंद, इस बार भी हाथ से फिसले और सिक्सर। ये नसीब के सिक्सर है। जो भी हो, केएफसी कृष्णापुरा एक ऐसे विश्वास वाली जीत हासिल की है। कंग्रेचुलेशंस केएफसी कृष्णापुरा। और उसी तरह रूफ टेक का टिप्पल्ला अगली बार के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच पुरस्कार पर भाजन हो रहे हैं तो मैन ऑफ द मैच अवार्ड के लिए एक तरफ 68 रन बनने वाले वो तरीका देखे हैं हमने, तो वहां पर ज्यादातर एक्स्ट्रा रनों की भीड़ वहां पर लगे।